Good morning, all. Welcome in E-class of Social Science. Children, in medieval period, there are so many religious movements which were spread, and these were the Bhakti and the Sufi movements. So here, today, in this video, we will discuss about chapter number 9 in history, that is religious belief. So what we are going to study now? Today, in this part, in part first, we will discuss about what is religious belief and about the Bhakti tradition. And we will also know about the life of Kabir, his teaching, and about the mystery of his death. Children, rest about part 2, about Nanak and his teaching, Sufi tradition, and other cults. We will discuss in our next video. What is religious belief? Children, what is the meaning of belief? Firstly, विश्वास करना, किसी ऐसे रिलीजन पे विश्वास करना जिसमें हम मानते हो कि there is any supernatural thing. Religious belief refer to attitudes towards mythological, supernatural or spiritual aspects of a religion. Beta, religious belief is distinct from religious practice and from religious behaviors, with some believers not practicing religion and some practitioners not believing religion. Two religious movements spread across India during the medieval period, that were Bhakti and Sufi movement. बेटा भक्ति means devotion, मतलब इतना devoted होना कि मानना, that is bhakti. And the teachers or saints of bhakti compose hymns, bhajans, song to glorify God, and Sufi saints to express their devotion through music. Saints of both tradition taught people to help those in need and lead a simple life. In fact, the word Sufism and Sufi come from the word Suf, which is a kind of coarse garment worn by these saints. Beta, what is the purpose of practicing these religion? Only the one purpose, that is the goal of salvation for oneness and others. Children, किसी भी सुपर नेचुरल थिंग को मानने का या गॉड को मानने का कारण क्या होता है? सैल्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति. एंड डिफरेंट रिलीजन हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सैल्वेशन एंड गॉड. तो दैट इज द रिलीजियस बिलीफ जिसमें माना जाता है कि देयर इज अ गॉड, देयर इज अ सुपर नेचुरल थिंग जो हमारी अच्छाई या बुराई सब चीजों को देख रहा है. तो मिडेवल पीरियड में इन सब चीजों को लोग बहुत ज्यादा माना करते थे. वाई? बिकॉज देयर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट. तो लोगों का ध्यान ज्यादातर किस तरफ था? भक्ति की तरफ था. तो इस भक्ति के भी बहुत सारे ब्रांचेस हुए फॉर विच वी विल डिस्कस नाउ. So students, at the very first we will discuss about Bhakti tradition which is related with Hinduism or Hindu religion. Beta, Bhakti movement in Hinduism refers to ideas and engagement that emerged in the medieval era on love and devotion to religious concepts built around one or more god and goddess. Bhakti movement praised against caste system using the local language so that the message reached the masses. Bhakti movement. This movement actually was started by Shankaracharya and Ramanuja. It was spread by Shankaracharya and Ramanuja, and the message of Bhakti in South India. Shankaracharya believed that there is no difference between the soul of God and the soul of human being, and the way of salvation. Beta, that was through knowledge, and Ramanuja through people to put themselves completely in the hands of God, and that by loving God and doing good deeds along could the soul be saved. इन दोनों का ही मानना ये था कि हम अच्छे काम करके गॉड को खुश कर सकते हैं. ठीक है. स्पेशली ये साउथ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुए थे.
In course of time, bhakti movement spread to other parts of India also. भक्ति मूवमेंट में बेटा ये जो इसकी दो ब्रांचेस हुई, एक तो कृष्ण भक्ति की हुई और एक राम भक्ति की हुई। तो ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में भी चला और साउदर्न इंडिया में भी चला। जो साउदर्न इंडिया में चला दैट वाज स्प्रेड बाय शंकराचार्य एंड रामानुजा, and in course of time bhakti movement is spread in other parts of India and sent which preach their message in regional language। रीजनल लैंग्वेज में क्यों बोला जाता था? सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उसको समझ सके, ठीक है, दैट इज वाई। एंड दोज सेंट विच प्रीच देयर मैसेज इन रीजनल लैंग्वेजेस, दिस मेड देम वेरी पॉपुलर अमंगेस्ट द मासेस। नामदेव, तुकाराम, जानेश्वर, एकनाथ, दे पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ विठला, जो कि विष्णु का रूप माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु composed many hymns in praise of Lord Krishna and popularized Krishna Bhakti in Bengal, ठीक है, and he emphasized the music of most important men in mean that is the way to connect with God। इन सबका मानना होता था कि म्यूजिक इज द वे बाय विच वी कैन कनेक्ट आवरसेल्फ विद गॉड। इसमें और भी नेम्स जुड़ते हैं लाइक तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। आपने हिंदी में इनके बारे में पढ़ा भी होगा कि तुलसीदास के पद क्या थे, मीरा के पद क्या थे। दे ऑल वर रिलेटेड विद भक्ति ट्रेडिशन इन हिंदुज्म। कोई राम भक्ति के ब्रांच से जुड़ा हुआ था तो कोई कृष्ण भक्ति के ब्रांच से जुड़ा हुआ था। इन शॉर्ट वी कैन से कि इन मेडिएवल टाइम पीरियड हमारी कंट्री में, इंडिया में जो भक्ति ट्रेडिशन चल रहा था स्पेशली इन हिंदू, तो इसमें राम और कृष्ण भक्ति को लेके बहुत सारे ब्रांचेस जो थे वो जुड़े हुए थे। टीचिंग ऑफ भक्ति सेंस, बेटा भक्ति मूवमेंट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर हम चाहे भक्ति मूवमेंट के टीचिंग्स देखें या किसी भी इंपॉर्टेंट जो भी हमारे प्रॉफिट्स हुए उनकी टीचिंग्स को देखें या सूफिज्म के टीचिंग को देखें, सभी टीचिंग एक जैसी ही बातें करते हैं। दैट इज गॉड इज वन। कि हम अगर अलग अलग गॉड को मानते हैं तो दैट इज नॉट गुड। गॉड इज वन अकॉर्डिंग टू देम, एंड टू वर्शिप गॉड मैन शुड सर्व ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले भगवान की सेवा करना, यानी अकॉर्डिंग टू भक्ति सेंस, अगर आप चाहते हैं कि भगवान खुश रहे तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आप ह्यूमैनिटी को समझे एंड ऑल मैन आर इक्वल। वन थिंग आई वांट टू क्लियर हेयर कि ये जो भक्ति मूवमेंट था इसके अलग अलग ब्रांचेस होने का एक कारण भी था कि उस समय हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म बहुत ही टॉप पर था, मतलब कास्टिज्म को बहुत ज्यादा लोग मानते थे। तो भक्ति के सेंस जो थे स्पेशली उन लोगों को इन लोगों ने समझाना या आगे बढ़ाना शुरू किया जो सोसाइटी में बहुत ही डाउन रह गए थे। मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को इन क्लास 6 आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कास्ट सिस्टम, अबाउट द ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रास। तो शूद्रास कंडीशन जो थी, शूद्रास की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे वर्क किए गए। नेक्स्ट वाज अबाउट वर्शिपिंग गॉड विद डिवोशन इज बेटर देन परफॉर्मिंग रिलीजियस सेरेमनीज एंड गोइंग ऑन पिलग्रिमेज। मतलब अगर हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, सेरेमनीज करते हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम खुद ह्यूमैनिटी को समझें। ओके, एंड कास्ट डिस्टिंक्ट, मतलब कास्ट सिस्टम को ना मानने के लिए बताया गया है भक्ति सेंस के अकॉर्डिंग। तो दीज आर द मेन टीचिंग्स ऑफ भक्ति सेंस। कबीर और कबीर दास जी, बेटा संत कबीर वॉज अ मिस्टिक पोइट और फिलोसोफर, and Sant Kabir Das was perhaps a greatest saint or poet of the Bhakti movement. And he was probably born in Kashi in Varanasi, and we have very little information about his early life, though there are many legends about him. Some believe that his mother was a Brahmin widow who abandoned him and that he was adopted by a childless Muslim couple who were weavers. Beta Kabir Das was a 15th century Indian mystic poet and saint, and whose writing influenced Hinduism Bhakti movement, and his verses are found in Sikhism
जो सिख के गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें बहुत सारे वर्सेस कबीर दास जी के भी पाए जाते हैं. His early life was in a Muslim family but was strongly influenced by his teacher, the Hindu Bhakti leader that was Ramananda. उनके टीचर थे रामानंदा, जिनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए थे. बेटा कबीर दास was also known as Kabir Das Ji and was born and brought up in a Muslim weaver family by Neeru and Neema. That was the name of his parents. He is generally regarded as the first Indian saint to have harmonized Hinduism and Islam by preaching a universal path with both हिंदू एंड मुस्लिम. बेटा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ट्रेडिशन को वो एक जैसा ट्रीट करते थे कबीर दास जी. उनकी जो वाणी है या उनके जो दोहे हैं जो आपने सुने भी होंगे, लाइक बुरा जो देखन मैं चला, इस तरह के आप लोगों ने बहुत सारे दोहे सुने होंगे. लाइक एक है हिंदू और मुस्लिम दोनों पर ही उन्होंने अपने बातों को लिखा है, अपने विचारों को बताया है. दैट इज लाइक एक दोहा मैं बता सकती हूँ कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पूजूं पहाड़. मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा. मतलब एक तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही ट्रेडिशन को. अकॉर्डिंग टू हिम, अगर आप गॉड को मानते हैं तो ओनली वन वे इज देयर कि आप अच्छे कर्म करें, अच्छा काम करें. उन्होंने हिंदुओं को भी क्रिटिसाइज किया है और मुस्लिम्स को भी क्रिटिसाइज किया. दैट्स वाई उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हुए. एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं दे वर नेम्ड लाइक कबीर पंथीज. उनके फॉलोअर्स को कबीर पंथीज बोला जाता था. Most important social impact of Bhakti movement was that the followers of Bhakti movement rejected the caste distincts. कबीर की बातों को मानकर कास्ट जो सिस्टम था उसको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू किया था. And through he called him by the different names such as राम, रहीम, हरि, अल्लाह. तो इन सब चीजों को भी कबीरदास जी ने क्या किया था, इन सब चीजों को भी उन्होंने डिनाई किया था कि वी शुड नॉट कॉल अस बाय दीज नेम. कबीर वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप. जो मूर्ति पूजा होती थी उनके बिल्कुल अगेंस्ट में थे. एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स, जो हिंदुओं में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, बलि प्रथा होती है, ये बहुत सारे रिचुअल्स होते थे जिनको कबीरदास जी डिनाई करते थे. और मुस्लिम्स के भी बहुत सारे रिचुअल्स को वो डिनाई करते थे. टेकिंग डिप इन होली रिवर्स, going on pilgrimage and other such outward from form of worship. He attacked the Brahmins and the Qazis also for their superstitions. So what were the main teachings of Kabir? As in last slide I was telling you about that he attacked on Brahman as well as Qazis. Means he was against the bad rituals of Hindus as well as Muslims. So according to him, his main teachings were he let stress bhakti, and he said that through bhakti or devotion one would come nearer to God. One could be released from the cycle of birth and death only by sincere love and devotion to God, which is called bhakti. According to Kabir Das ji, he was saying कि जो ये पुनर्जन्म होता है, he believe in पुनर्जन्म, कि अगर ये पुनर्जन्म की चीजों से कोई मुक्ति पाना चाहता है तो only one thing he can do कि he should have a good faith फॉर गॉड. एंड उसको क्या करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए. कबीरदास जी is the first Indian saint who has coordinated the Hindus and Islam by giving a universal path which could be followed by both Hindu and Muslim. Beta, he believed in the Vedantic concept of Atma. उनको पुनर्जन्म पर विश्वास था, वेदों पर वो विश्वास करते थे, but rejected the Hindu custom of idol worship, showing clear belief in both Bhakti and Sufi philosophies. Kabir Das ji was brought before Emperor Sikandar Lodi and charged with claim possession of divine power. He was banished also from Varanasi इन 1495. तो बहुत से लोग ऐसे भी थे उस कॉन्टेम्पररी एरा में जो कबीर दास जी को क्या करते थे, बिल्कुल भी डिनाई करते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे. तो कुछ लोगों ने जो हायर अथॉरिटी में थे उन्होंने उनको बैनिश भी कर दिया था, सोसाइटी से अलग भी कर दिया था
कबीरदास जी को? वेल, अकॉर्डिंग टू कबीरदास जी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में होने वाली जो बुरी चीजें थी, जो बुरे कस्टम थे, उनको बिल्कुल अलग तरह से, उसको सोसाइटी से अलग करने की बात की थी और उन चीजों को मानने की बात की थी जिससे हम गॉड के प्रति डिवोटेड हो सके। ऑफ कबीरदास जी। बेटा, कबीरदास जी was died in 1518 in Maghar. When he died, both Hindus and Muslims he had inspired claimed him as theirs. See this picture. Kabir Das ji choose this place to die. ये जगह उन्होंने समाधि लेने के लिए चुनी थी, which is famous. Kabir Das ji was very much famous in his time period and there were a lot of followers. उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जिनके बीच में एक तरह से वी कैन से कि एक तरह से बहस सी छिड़ गई थी कि उनका क्रिमिनेशन कौन करेगा। According to the legends, Kabir chose to leave the world at the age of 120 and there was a fight between the Hindu and Muslim followers क्योंकि उनको मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले उनके फॉलोअर्स बहुत सारे थे। तो उनकी जब डेथ हुई तो किस तरह से उनकी समाधि हो या किस तरह से उनका अंतिम संस्कार हो, इस चीज को लेकर हिंदू और मुस्लिमों में बहस छिड़ गई। आधे लोग चाहते थे कि उनको जलाया जाए उनकी बॉडी को और आधे लोग चाहते थे कि उनको दफनाया जाए। दैट इज वाई आफ्टर हिज डेथ ओवर हिज टेकिंग पोजीशन ऑफ हिज बॉडी अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स मीटर अवे फ्रॉम द समाधि लाइज अ गुफा, जिसको केव भी बोलते हैं, वेयर कबीर दास जी यूज फॉर मेडिटेशन। तो कबीर दास हैड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम डिसिपल्स and according to the legends, when he passed away, there arose a dispute as to how his last rite should be performed. The Hindus want to cremate the body while the Muslims want to bury it. When they removed the stone, they found only some flowers, and the Hindu took half and cremated them, and the Muslim took the other half and buried them. तो it was the life of Kabir. उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको कबीर पंथी के नाम से जाना जाता था। कबीर की बानी, कबीर के बीजक आज भी फेमस हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के बहुत सारी टीचिंग्स को लिया गया है। Well, students, I hope this video will be useful for you. Thank you.